بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک فقیرنی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے بھیک مانگ مانگ کر اپنا محل بنا لیا تھا۔ میں وہاں رانی بن کر رہتی اور پھر بھیس بدل کر بازاروں میں بھیک مانگنے جایا کرتی۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک جوتے والا عورتوں کی پرانی چپلیں لے کر انہیں نئے جوتے دے رہا ہے، ہر عورت اپنا پرانا جوتا دے رہی تھی، میں نے بھی اپنے جوتا دے کر نیا لے لیا۔ پر مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ جب ہی جوتے کا تلا کھول کر دیکھا تو روح کانپ گئی، کیونکہ اس میں جوتے والے نے اپنی میرا نام زاہدہ ہے اور میرا تعلق کشمور سے ہے۔ میری عمر اس وقت 40 سال ہے۔ میں جو آج ایک فقیرنی ہوں، میں ہمیشہ سے ایسی نہ تھی، لیکن مجھے ان حالات تک پہنچانے والے میرے ہی اپنے تھے۔ میں جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے بابا گاؤں کے سردار تھے اور ہر کوئی ان کی بات مانتا تھا اور ان کے حکم پر سر خم کیا کرتا تھا۔ ان کی مرضی کے بغیر گاؤں کا پتا تک نہ ہلتا تھا، اور اسی وجہ سے ہمارا پورا گاؤں میں رعب تھا اور سب ہم سے ڈرتے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹیوں کے نصیب صورتوں کے محتاج نہیں ہوتے، اور اگر دولت سے بیٹیاں بستی تو صرف بادشاہوں کی بیٹیوں کے گھر بسا کرتے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ویسا ہی تھا، کیونکہ میرے بابا تو گاؤں کے سردار تھے، لیکن میری شکل اتنی اچھی نہ تھی کہ کوئی مجھ سے شادی کا خواہش مند ہوتا، بلکہ میں تو کافی حد تک قبول صورت تھی۔ میری رنگت بہت سانولی تھی اور قد لمبا، اور میں اس قدر پتلی سی تھی کہ ایسے لگتا کہ جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو جس پر کپڑے ڈالے ہوں۔ اوپر سے سونے پر سہاگا میرے چہرے پر موجود کیل مہاسے تھے۔ کوئی بھی مجھے دیکھ کر مجھے نہیں چاہ سکتا تھا، کسی کو بھی میری خواہش نہیں ہو سکتی تھی۔ ہمارے خاندان میں باقی سب ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھے۔ سب لڑکیاں ایسی سفید رنگت، نازک جسم، لمبے بال، چمکدار اور حسین جلد، سب کچھ اچھا تھا سوائے میرے۔ مناسب سراپے والی میں لڑکیاں دیکھ کر اکثر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی تھی۔ مجھے تو میری سگی ماں بھی پسند نہ کرتی تھی، وہ مجھ سے دور دور رہتی۔ خاندان کا کوئی بھی فنکشن ہوتا، وہ مجھے یا تو ساتھ لے کر ہی نہ جاتی تھیں یا پھر نقاب کرنے کا کہتی تھیں، اور وہاں جا کر بھی مجھے ساتھ نہ بٹھاتی تھیں، بلکہ مجھ سے بہت دور دور رہتی تھی کہ کہیں کوئی پوچھ ہی نہ لے۔ اور کوئی بھی اگر ان سے پوچھتا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے، تو وہ اس بات کو نظر انداز ہی کر دیتی، جیسے میں ہوں ہی نہیں یا میرا وجود موجود ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ سب بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ اولاد تو جیسی بھی ہو، ماں باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ کبھی ایسا نیچا نہیں دکھا سکتے، تو میرے ساتھ ہی ایسا آخر کیوں ہو رہا تھا؟ بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا تھا کہ ہماری ایک چچی تھی جن کی ایک بیٹی معذور تھی، اور باقی سب بچے تندرست اور اچھے تھے، لیکن وہ چچی سب سے زیادہ پیار اپنی اس معذور بچی سے کیا کرتی تھی اور اس کے بغیر ایک پل بھی نہ گزارتی تھیں۔ اسی وجہ سے مجھے اپنی اماں سے اب شدید نفرت ہوتی تھی کہ بھلا کیسی عورت ہے جو اپنی ہی اولاد کو احساس کمتری کا شکار کر رہی ہے۔ اور اماں کی دیکھا دیکھی گھر میں کوئی بھی میرے ساتھ اچھے سے برتاؤ نہ کرتا تھا۔ میں گاؤں کے سردار کی اکلوتی اولاد تھی، اس کے باوجود بھی کسی کی آنکھوں میں میرے لیے وہ عزت نہ تھی جو ہونی چاہیے۔ مجھے کبھی کسی نے ایسا احساس نہ دلایا تھا کہ مجھ میں اعتماد آتا۔ میں کسی صورت بھی باہر نہیں نکلتی، نہ کسی گاؤں والے نے آج تک مجھے دیکھا تھا، جبکہ میری کزنز پورے گاؤں میں گھومتی پھرتیں اور کوئی بھی انہیں روکتا نہیں تھا۔ آج تک گاؤں میں کسی نے میری شکل تک نہ دیکھی تھی، کیونکہ میں یا تو نقاب کر کے جاتی یا جاتی ہی نہیں۔ لیکن میرے کزنز نے سب کو کہہ رکھا تھا کہ میں حسین نہیں ہوں، اس لیے کوئی میری طرف کا رخ بھی نہ کرتا، اور سب سے بڑا المیہ میرے لیے تب ہوتا کہ جب ہم کسی کی شادی میں جاتے تھے، کیونکہ وہاں سب لوگوں کے پاس بات کرنے کا صرف ایک ہی موضوع ہوتا تھا، اور وہ تھی میری ذات۔ سب لوگ مجھے دیکھ دیکھ کر ہنستے اور اکثر تو یہ حد بھی کرتے کہ ہر دلہن کو مذاق میں کہتے کہ اسے تھپڑ مارو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا تھپڑ ہی اس کے کام آ جائے اور اس کی قسمت کھل جائے، ورنہ تو کوئی امکان نہیں۔ مجھے اس بات پر بہت رونا آتا تھا، لیکن زیادہ رونا تو اس بات پر آتا تھا کہ دلہنیں بھی میرا مذاق بنانے کے لیے مجھے تھپڑ مارتی تھیں اور پھر کہتی کہ کسی حقدار کا حق لے گئی۔ یہ سب دیکھ دیکھ کر میں نے زندگی کے بارے میں کچھ اچھا سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور اب میں نے یہ کبھی بھی نہ سوچا کہ میری بھی کبھی شادی ہوگی۔ میں تو یہی سوچتی تھی کہ ساری زندگی یہیں پڑی رہوں گی، اور تو اور میرے گھر والے بھی اس رد عمل کے لیے تیار تھے، اور کبھی کسی نے سوچا نہ تھا
कि मेरी भी शादी होगी, मेरा भी कोई घर होगा, गृहस्थी होगी। जब किसी की माँ अपने बच्चे के लिए जहेज बनाती तो मेरी अम्मी हकारत से मुझे देखती थी और आप भर कर कहती थी कि आप भी खुशकिस्मत हैं कि जो बेटियों का जहेज बनाने को मिल रहा है। एक हम हैं कि जिन्होंने सारी जिंदगी इस बोझ को संभाला है और पता नहीं कब तक ये हमारे सर पर रहेगी। ऐसी बातें मुझे बहुत दुख पहुंचाती थी और मैं ये सोचती कि काश मैं मर जाऊं या किसी ऐसी जगह पर भाग जाऊं जहां मुझे किसी का भी सामना ना हो। मैं अक्सर अल्लाह ताला से ये शिकायत करती थी कि आपने मेरी ही जिंदगी को ऐसा क्यों बनाया है और मुझे ही ऐसी मुश्किलें क्यों दी हैं। काश मैं भी नॉर्मल लड़कियों की तरह होती। लेकिन मेरी किसी भी शिकायत का रब पर कोई असर नहीं हो रहा था और शायद मैं सारी जिंदगी इसी कश्मकश में रहती कि मेरे साथ आगे क्या होगा। लेकिन कुदरत ने मेरे साथ एक ऐसा बड़ा खेल खेला कि मैं हैरान रह गई। इस खेल का ना मुझे कोई इल्म था ना मेरे घर वालों को। असल में हमारे कबीले की शुरू से ही दूसरे कबीले से एक दुश्मनी थी, क्योंकि वो लोग गांव के सरदार अपने कबीले से बनवाना चाहते थे, क्योंकि गांव में वही कबीला बड़ा माना जाता था कि जिसका सरदार गांव का सरपंच होता था और बाकी सब लोग उस कबीले को अपना शरीक मानते थे। और इस वक्त हम लोगों को सब लोग अपना शरीक और दुश्मन समझ रहे थे और ऐसे ही एक दूसरे बड़े कबीले से हमारी दुश्मनी भी चल रही थी। और ये तब तक चलती कि जब तक मेरे बाबा की जगह दूसरे कबीले का कोई सरदार ना बन जाता। और इसी वजह से मेरे भाई से एक गलती हो गई। भाई से उसी दूसरे कबीले के सरदार का बड़ा बेटा मारा गया। उस दिन बहुत ही सर्दी थी और भाई घर से डेरे पर जाने के लिए बाहर निकला। वो घर पर कह रहा था कि वो शाम तक शिकार करके आएगा। मैंने मजाक में कहा कि ध्यान रखना किसी इंसान का शिकार ही ना कर लेना। उस वक्त मैं ना जानती थी कि मेरी ये बात सच साबित हो जाएगी और हमारे घर के साथ वो होगा जो मैंने कभी सोचा भी ना था। जब सरदार का बेटा मारा गया तो जिरगा बैठा। यहां पर रिवाज था कि मुलजिम की सजा के तौर पर उसकी बहन या बेटी को वनी कर दिया जाता या फिर मुलजिम को मौके पर कत्ल कर दिया जाता। यही शराइत बाबा के सामने रखी गई और उन्होंने मुझे विनी करने का फैसला कर लिया। हालांकि सब जानते थे कि भाई ने जानबूझकर सरदार के बेटे को मारा नहीं था। उस दिन भाई डेरे पर जाने के लिए निकला था जब सरदार के बेटे अकमल की गाड़ी भाई को नजर आई। ऐसे लगा कि जैसे वो गाड़ी खराब थी। भाई ने उसकी मदद के लिए गाड़ी रोकी और उसके करीब गए, लेकिन अकमल ने आगे से बंदूक निकाल ली और भाई पर तान ली और वो बंदूक चलाने ही वाला था कि भैया ने वो गोली का रुख आसमान की तरफ मोड़ दिया और गोली चल गई। वो हवाई फायर था, लेकिन अकमल को फिर भी बहुत गुस्सा आया कि उसका वार कैसे खाली जा सकता था। वो तो बहुत ही ताकतवर था और उसने इसी जौम में आकर एक दफा फिर से बंदूक को भाई की तरफ मोड़ दिया, लेकिन भैया ने उसका रुख जल्दी से दूसरी जानिब कर दिया और उन्हें पता नहीं लगा कि कब और कैसे गोली चली और वो अकमल को लग गई। गोली बिल्कुल दिल के पास लगी थी और खून का फव्वारा फूट पड़ा था और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। पहले तो वहां कोई भी न था, लेकिन जब भाई उस पर झुका तो ना जाने कहां से अकमल के कुछ लोग वहां पर आ गए और उन्होंने भाई को पकड़ लिया। उन्होंने भाई की तस्वीर भी बना ली। सब लोगों ने भाई को पकड़ लिया और मारते हुए जिरगे में ले गए और वहां मेरी बोली लगा दी गई। उस दिन मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मुझे अच्छे से ये इल्म था कि विनी के साथ कैसा सलूक किया जाता था। भैया ने थोड़ी सी मुखालिफत की थी कि मैं मर्द हूं, बेगैरत नहीं हूं कि अपनी बहन किसी को दे दूं, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। मैं रो रही थी, लेकिन बाकी सब तो बिल्कुल खामोश थे। उन्हें मुझसे फर्क भी ना पड़ता था। बस एक बोझ था जो उनके सर से उतर रहा था। अम्मा आज भी मुझे नहूसत कह रही थी और फिर मुझे सरदार के छोटे बेटे की दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया गया। मैं रुखसत हो गई और फिर मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया। वहां मेरा शौहर यानी याकूब आया और फिर उसने मुझे बालों से पकड़ा और जमीन पर धक्का दे दिया। मैं बहुत परेशान थी कि ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा था। मैंने तो कुछ भी गलत ना किया था, तो फिर किस जुर्म की सजा मुझे मिल रही थी? मेरी शादी क्यों करवाई गई? मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। और फिर याकूब ने मुझे मारना शुरू किया और कितनी ही देर तक मारता रहा और मैं चीखने की कोशिश करती तो वो मेरे मुंह पर हाथ रख देता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा अजाब है जो मुझ पर नाजिल हुआ है। ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैंने किया था? और फिर जब वो मार मार कर थक गया तो बेड पर जाकर सो गया और मैं जमीन पर पड़ी रही और मैं सारी रात रोती रही। मैं नहीं जानती थी कि मेरी आंख किस वक्त लगी, लेकिन
मैं उस रात रो रो कर सो गई थी और फिर सुबह मेरी आंख चीखों से खुली थी। याकूब की बहन हमें जगाने के लिए आई थी और रात को याकूब दरवाज़ा बंद करना भूल गया था, और इसी वजह से जब उसने दरवाजे को हाथ लगाया तो वो पूरा खुल चुका था और सामने का मंजर देख वो हैरान रह गई थी। मेरी सास ने याकूब से कहा था कि इस बच्ची के साथ बिल्कुल भी गलत सलूक मत करना, क्योंकि इसका तो इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है। यही मेरे ससुर ने भी कहा था, लेकिन याकूब ने फिर भी मुझे जानवरों की तरह मारा था। मेरी सास ने जब सुबह मेरी ये हालत देखी तो फौरन डॉक्टर को बुलाया था और कई दिन तक मुझे अपने पास रखा था। इतने दिन याकूब मुझे हाथ भी ना लगा सका था और उसने शहर जाने की ठान ली। सब ने कहा कि अकेले जाओ, लेकिन वो बज़िद था कि मुझे भी साथ लेकर जाएगा। उसने कहा कि मैं उसकी बीवी हूं और बीवी के बगैर मैं आखिर क्यों जाऊंगा। उसकी ये बात ठीक भी थी और फिर मेरी सास ने मुझे उसके साथ भेज दिया और बहुत समझाया भी कि इसका कोई कसूर नहीं है, ये एक मासूम बच्ची है। बज़ाहिर तो वो भी समझ गया था और सास के सामने मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन शहर जाकर उसने असली रंग दिखाए थे। पहले तो अच्छी तरह उसने मुझे मारा था और फिर अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी की। इतना टॉर्चर किया कि मैं बेहाल हो गई थी और फिर मुझे एक कोठे पर बेच दिया। मैंने बहुत कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, लेकिन वो इस पर ऐसे हंसने लगा कि जैसे मैंने उसका मजाक किया हो, और कहा कि कभी अपनी शक्ल देखी है, तुम्हें मैं अपनी बीवी बनाऊंगा क्या। और फिर मुझे तलाक देकर चला गया था और मैं वहां रोती रही, मगर अभी मुझे सोग मनाने का पूरा मौका भी ना मिला था कि मुझे मालिकन ने भूखे भेड़ियों के आगे डाल दिया, जो कहने को मर्द थे। उस दिन से मेरी इज्जत नीलाम होने लगी थी। मैं बदसूरत थी, इसलिए जो भी कोई गरीब कहा खाता मुझे उसके आगे डाल दिया जाता। बाकी अमीरों के पास तो खूबसूरत लड़कियों को भेजा जाता था, लेकिन मर्दों को तो मेरे बदसूरत होने से भी कोई दिक्कत न थी। उन्हें तो बस औरत का जिस्म चाहिए होता है। औरत कैसी है, इससे उन्हें कौन सा कोई फर्क पड़ता है। यही सब होता रहा और न जाने कब तक होता रहा कि मुझे एक दिन फरार का रास्ता मिल ही गया। उस दिन मेरी किस्मत की देवी मुझ पर मेहरबान थी। उस रात सब सो रहे थे। मैंने मालिकन के दराज में से पैसे निकाले और एक चादर लपेटकर बाहर निकल गई और बहुत ही आराम से वहां से निकलने में कामयाब हो गई। किसी को भी पता न चल सका और अभी सुबह न हुई थी कि मैं एक बस में बैठ गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वो बस कहाँ जा रही है। मैं बस उस बस में सवार हुई और जब उस बस का आखिरी स्टेशन आया तो मैं इस जिल्लत कदे से 8 घंटे की मुसाफत पर थी। मैं वैसे ही जाकर बस अड्डे पर बैठ गई। पास कोई सामान तो था ही नहीं, ना ही रहने का कोई ठिकाना। तभी एक आदमी ने मुझे मांगने वाली समझकर खाना दे दिया और फिर सारा दिन मैं उसी जगह पर बैठी रही। लोग मुझे फकीरनी समझकर खाना और पैसे देते रहे। शक्ल भी ऐसी ही थी कि तरस आता और हुलिया भी ऐसा ही था। इसी वजह से आराम से मुझे कोई भी फकीरनी समझ लेता। कुछ दिन यही चलता रहा और मुझे एहसास हुआ कि ये काम तो बहुत बेहतरीन है। ना कोई मेहनत करनी पड़ती, ना कुछ और, बस भीख मांगती। और फिर उस दिन से मैंने ये नया काम शुरू कर दिया। मैं जगह जगह जाकर दुकानों पर भीख मांगने लगी। एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और बस वहां सोने के लिए ही आती थी। खाना मुझे बाहर से मिल जाता था और कपड़े चाहिए ना होते। रोज के जितने भी पैसे होते मैं इकट्ठे करके रखती जाती। ये जिंदगी उस सरदार की बेटी की जिंदगी से कई गुना बेहतर थी, बल्कि उस तवाइफ की जिंदगी से भी बहुत अच्छी थी। ना इज्जत बेचनी पड़ती थी और ना कोई हकारत से देखने वाला था। बस काबिले रहम ही बनना था, जो कि मैं बचपन से ही थी और वो मैं बनी हुई थी। रोज पैसे मांगती और एक संदूक में रखती जाती और इस तरह भीख मांगते हुए मुझे कई साल बीत गए और वक्त इतनी तेजी से गुजरा था कि मैं कभी सोच भी न सकती थी। 8 साल गुजर चुके थे और मैं अब तक भीख ही मांगती थी। इतने सालों में बहुत फर्क आ गया था। मैंने भीख मांग मांग कर अपना महलनुमा घर बना लिया था, जहां पर हर किस्म की सहूलत मौजूद थी। ऐसा शानदार तर्ज जिंदगी था कि कभी कोई सोच भी ना सकता होगा कि मैं अपने बलबूते पर यह भी कर सकूंगी। और ये सब मैंने भीख मांग मांग कर बनाया था। मेरे साथ कोई भी न था, न बच्चे थे न घर वाले। इसी वजह से मेरे पैसे बहुत जल्दी जमा होते थे। मैं चाहती तो अब बगैर भीख मांगे भी रह सकती थी। मेरी जिंदगी बहुत पुरसुकून कट जाती, लेकिन मुझे भीख मांगने की अब लत पड़ चुकी थी। लोग भी मुझे पहचानने लगे थे कि ये फकीरनी सालों से यहाँ है।
इसी लिए अब दिक्कत भी ना होती थी। लेकिन तभी कुछ अजीब सा होने लगा। सर्दियां आई तो मैं शदीद बीमार पड़ गई और कुछ दिन काम पर ना जा सकी थी। जब ठीक हुई तो मैंने दोबारा से बाजार का रुख किया, लेकिन मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ था। बाजार में एक नई दुकान खुली थी जो काफी बड़ी थी। उस दुकान के बाहर बहुत सारा रश था। मुझे हैरत हुई कि भला ये लोग ऐसा क्या बेच रहे हैं जो इस हद तक रश है। मैंने थोड़ा आगे होकर देखा तो वो जूतों और चप्पलों की दुकान थी। मुझे अब थोड़ा सा अजीब लगा कि यहाँ तो पहले भी बहुत सी जूतों की दुकानें थीं, लेकिन इतना रश पहली दफा ही देखा था। मुझे लगा कि ये लोग शायद कुछ खास किस्म के जूते बेच रहे होंगे। लेकिन जब लोगों के हाथों पर गौर किया तो एक और हैरत का झटका लगा था। वो जूते तो बिल्कुल सादा और आम से थे। मुझे अब दाल में कुछ काला लग रहा था और फिर एक आदमी से पूछा तो इल्म हुआ कि ये जूते तकरीबन मुफ्त ही मिल रहे थे। आपको पुराना जूता देना होता था और बदले में कोई भी जूता किसी भी डिजाइन का होता आप ले जा सकते थे। ये सब जानकर तो मुझे वाकई हैरत होने लगी थी कि आजकल की दुनिया में भी ऐसा कोई था जो इतने लोगों को मुफ्त कुछ दे रहा था। मैं जो दुनिया के करोड़ रंग देख चुकी थी, उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था कि कोई इंसान नेक नियति की गर्ज से लोगों को यूं जूते बांट रहा था। और लोग कहते थे कि दुकान वाले पुराने जूते इसीलिए लेते हैं ताकि गरीबों को एहसास कमतरी ना हो कि वो मुफ्त कुछ ले रहे हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बाजार में भीख मांग रही थी जब एकदम मेरा जूता टूट गया। मुझे कुछ समझ ही ना आया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसे भी ना थे। और फिर तब मैंने उस दुकान से अपना टूटा हुआ जूता देकर नया जूता ले लिया और घर आ गई। लेकिन न जाने मेरे दिल में क्या समाई कि मैंने वो जूता नीचे से खोल कर देख लिया और तब मैं हैरान रह गई जब उस जूते के नीचे से एक छोटी सी चिप निकली। उसकी हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं इस चिप को कचरा कुंडी में फेंक देती हूँ, लेकिन उसी वक्त जहन में आया कि नहीं, अभी नहीं। मुझे ये जानना होगा कि आखिर किस मकसद के तहत ये चिप जूतों में डाली जा रही थी। मैंने सोचा कि कहीं ये इत्तफाकन ना हुआ हो और मैं कुछ गलत ना सोच रही हूं। इसीलिए मैं दोबारा एक जूता तोड़ कर ले गई और नया जूता ले आई। घर आकर जब जूता खोला तो उसमें एक और चिप नजर आई। अब मेरे शक को यकीन की मोहर लग चुकी थी और फिर मैंने वो जूता घर में ही रखा और खुद पुलिस स्टेशन चली गई। इतने सालों से मैं यहां थी, इसी वजह से मेरी अच्छी जान पहचान सबसे हो चुकी थी। और फिर मैंने इंस्पेक्टर को बताया कि जूतों में से चिप निकल रही है और मैं अपने शक को यकीन में बदल चुकी हूँ और बहुत ही यकीन से ये बात कह रही थी। इंस्पेक्टर को भी वो चिप देखकर यकीन आ गया था कि ये कोई ट्रैकिंग चिप थी जो लोगों का पीछा करने के लिए लगाई जाती थी और मेरे घर दो चिप्स मौजूद थीं। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ चोरी छुपे मेरे घर आ गए और छुप गए और आखिरकार रात हो गई जिसका हमने इंतजार किया था। और ठीक आधी रात को घर में कुछ शोर हुआ था और चार लोग मेरे घर में दाखिल हुए। अभी वो मेरे कमरे में आए ही थे कि इंस्पेक्टर ने उन्हें पकड़ लिया। वो सब के सब नकाबपोश थे। ऑफिसर ने उनके मास्क उतारे तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उनका सरगना मेरी जिंदगी का भी मुजरिम था। वो याकूब था। अगेन वो याकूब था। मेरे मुंह से उसका नाम निकला। वो मुझे पहचान ना पाया था और मैं भी खामोश हो गई। और फिर पुलिस ने उन्हें मार मार कर उनसे हकीकत जान ही ली। ये एक गैंग था जो लोगों को मुफ्त जूतों का झांसा देता था और जो भी औरतें उनके पास आती उन्हें वो चिप वाले जूते देते थे। वो रातों रात उन घरों में घुसकर औरतों के साथ गलत सलूक करते थे और फिर उसकी वीडियो बना लेते थे और उसके बाद ये वीडियोस कुछ गंदी वेबसाइट्स पर अपलोड करके पैसे कमाए जाते। इस तरीके से उनकी नफसानी ख्वाहिशात भी पूरी होती और उनका धंधा भी चल जाता था। वो लोग डॉलर्स में कमाई करते थे और नए लोग रखते जाते थे और इसी तरह उनका धंधा चल रहा था। ये लोग आज तक पकड़े न गए थे क्योंकि कोई भी औरत शर्मिंदगी के डर से कंप्लेंट ही न करती थी और ना ही उसके घर वाले करने देते थे। और इसी वजह से ये लोग आज तक बचते हुए आ रहे थे। लेकिन अब मैं थी कि जिसके आगे पीछे कोई भी ना था और जिसकी इज्जत न थी और जो बिल्कुल अकेली थी। इसी वजह से इन लोगों का पर्दाफाश हो गया। मुझे आज समझ आया था कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। मेरी जिंदगी का भी कोई मकसद था। मुझे इन लोगों का पर्दाफाश करना था और कई औरतों की इज्जत को बचाना था। इसी वजह से मैं इतनी ठोकरें खा खा कर यहां तक पहुंची थी।
पुलिस ने इनके सब आदमियों को पकड़ लिया था और अदालत में केस दर्ज हो गया था। याकूब पर लड़कियां कोठों पर बेचने का केस भी दर्ज हुआ था। तमाम सोशल मीडिया साइट से वो वीडियोस हटा दी गई थीं। मैं इस सब के बाद भी अपने घर ना गई थी और मैंने अपना महल अपनी जैसी गरीब फकीरनियों के लिए खोल दिया था ताकि सब औरतों को महफूज पनागाह मिल सके। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।